evening, everybody. Good evening, sir. Yeah, good evening, good evening. Tushar sir, can you hear me well? Yes, sir. Okay. So let's start with the lecture now. What we have seen in last lecture, we'll have the recap of the topic, what we have seen in last lecture, and then we'll go ahead with this topic. Okay, so let's move ahead with this. So anyone will recall what we have seen in last lecture? Anyone, please? Whoever is able to recall it. So let me know what we have seen in last lecture. What are the topic we have discussed from structure of an atom? So anyone, please. Not able to recall. Okay, I will have the recap of what the topic we have seen in last lecture. We are here with structure of an atom, or we have seen that every matter has the tiny particle which is known as an atom. Dalton's atomic theory put for that atom is a tiny particle of the matter. So we are interested to know the structure of atom. Once we know the structure of atom, we would be able to find out the properties of the matter, and that's why we are interested to know the structure of an atom. Journey began with a different scientist trying to find out the different particles present in an atom, and we know it very well. The Faraday is the first scientist who stated that the matter is electrical in nature. The matter can conduct electricity, because of which there should be something in matter that is in atom, and we are interested. We are eager to find out that part. The scientists from the different to find out that part. And the first scientist is J.J. Thomson, who successfully discovered electron, which is a negative charge particle present in an atom. The second particle is discovered by Rutherford and Goldstein, and that is nothing but the proton, which is positively charged. And third particle, which is discovered by Chadwick, is nothing but the neutron. So finally, we come to know that proton, neutrons, and electrons are the fundamental particles of an atom, and these are called the fundamental particles. Furthermore, journey still continued, and as of now, we have more than 32 different types of subatomic particles are present in an atom. These particles are nothing but you can say here, that is, you can say proton, neutrons, electrons. Apart from that, we are here pions, mesons, gluons, antineutrino, antiprotons, and as well as we can say quarks and God particles. These were latest discovered 4 years back in France. So these are the particles. So these are subatomic particles. Now it is very interesting to see that discuss the part how these particles are held together in an atom, and that is nothing but that is the part which is related to the structure of an atom. Different theories, different scientists try to find out how these particles are held together in an atom. Though these are subatomic particles, though proton, neutrons, electrons are subatomic particles, how these particles are held together in an atom. That was the part of interest, and there are 4 theories what we discuss here in chapter. Number 1 theory is J.J. Thomson atomic model. Number 2 is Rutherford's atomic model. Number 3 is Bohr's atomic model, and number 4 is quantum mechanical model, which is a very latest and advanced branch of physics, has put forth the latest atomic model, which is widely accepted throughout the world. So that is what we have discussed here. Every atomic model had some certain foundation. Means कुछ पहले इन्वेंशंस होना पड़ता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ दूसरे फील्ड्स के अंदर कुछ इन्वेंशंस होने पड़ते हैं जिसके आधार पर ये नए मॉडल्स रखे जाते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहला रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, लेकिन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आने से पहले हेनरी बेक्वेरेल एंड रुदरफोर्ड इन्होंने रेडिएशंस ढूंढ निकाला, एंड वी हैव अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस. आउट ऑफ दैट Rutherford took alpha radiations and he bombarded these alpha radiations with a thin gold foil, and he studied the scattering of alpha radiations. Based on that, he performed the experiment. So we have seen the Rutherford's experiment, Rutherford's observations, conclusions, atomic model, and its drawbacks and disadvantages. In last lecture, we have discussed that part. Also, we have seen J.J. Thomson atomic model. J.J. Thomson stated that the structure of atom is a spherical one, and he made it analogy compared with a watermelon. So that structure of atom is spherical one. It is a positive charge sphere. Electrons are embedded as like seeds in watermelon, and the total mass of an atom is due to total positive sphere. So that has been stated by J.J. Thomson. But Rutherford stated that the whole mass of an atom is concentrated at the nucleus, which is a very small part of an atom at the center, and that's why this theory, and that has been proved. So Rutherford's theory has rejected J.J. Thomson atomic model, and hence we have gone for the Rutherford's atomic model, and we have seen Rutherford's atomic model in last lecture. उसका
स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेडिएशंस का हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा, उसके ऑब्जर्वेशंस देखे, कंक्लूजंस देखे, एटॉमिक मॉडल देखे, ड्रॉबैक्स देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद एन एटम। तो उसके लिए हमने पहले तीन प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। नंबर वन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। मोजले वाज द साइंटिस्ट who was studying X-rays. That is, he bombarded cathode rays on the metal plate, and metal plate emitted X-rays. He studied the square root of frequency of these radiations, X-rays, and he found that square root of frequency of each and every metal is directly proportional to specific integer, and that specific integer is nothing but the atomic number denoted by Z. तो कल हमने देखा, and finally we come to that this atomic number is nothing but the total number of protons present in the nucleus of an atom. So we've seen that. So किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं, रूलर क्वांटिटी बताया हमने। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, व्हिच इज नोटेड बाय Z। फिर दूसरा देखा हमने न्यूट्रॉन नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। एंड हमने ये भी देखा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्म्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय A is equal to Z plus N। ये कल हमने फॉर्मूला भी देखा। सो अगर हमें N पता है और Z पता है तो हम लोग A निकाल सकते हैं। A पता है, Z पता है, तो N निकाल सकते हैं। Like that, any two quantities are known, we can calculate the third quantity. That is what we have seen in last lecture. तो कल के लेक्चर में ये तीन प्रॉपर्टीज भी हमने देखे। That is atomic number denoted by Z, A, and neutron number denoted by N. That is what we have seen here in last lecture. Now, two, three more definitions of we have discussed, which are very fundamental properties related with an atom. So let's ahead with next property called, you can say, isotopes. So isotopes is the property what we are going to discuss. Again here, this is very important property related with an atom. Isotopes. पहले मैं एग्जांपल दूंगा, फिर उसका डेफिनेशन बताऊंगा। शायद मेनी अमंगस्ट यू मे बी नोइंग दिस, बिकॉज़ जो सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से आ चुके हैं वो जानते हैं अच्छी तरह की व्हाट आर दिस आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, दीज आर द आइसोटोप्स। ऑलरेडी मैंने ये बात कई बार बताया आपको कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लाइड करके कोई भी एलिमेंट इस तरह से दिखाया जाता है, X, Z, A and N। So Z is atomic number, X is the symbol of element, A is mass number, N is a neutron number. So उस तरीके से ये अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आता है 6, यहाँ 6 और यहाँ पे 6। न्यूट्रॉन नंबर बहुत केस में नहीं लिखा जाता, तो ये एलिमेंट इस तरीके से भी दिखाया जाता है, कभी-कभी X Z A भी दिखाया जाता है, कभी-कभी X Z ऐसा भी दिखाया जाता है। There are many ways, अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, बट मोर करेक्ट ये तरीका होता है और इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। So in that sense, we'll have this presentation. So this is the carbon atom, carbon 12, carbon 13, carbon 14. ये है। ऑक्सीजन की भी हो सकते हैं, तो we can have oxygen 16, oxygen 17 and with oxygen 18. So here you can say 8, 8 and 8. हाइड्रोजन के होते हैं, हम जानते हैं हाइड्रोजन 1, 1, हाइड्रोजन 1, 2, है ना, हाइड्रोजन 1, 2, then hydrogen 1, 3. ये। So these are the examples of isotopes. These are the isotopes of oxygen, these are the isotopes of carbon, and these are the isotopes of hydrogen. इससे मेन एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, because there are 450 से ज्यादा isotopes आपको मिलते हैं periodic table. So what are the isotopes? अगर हम एक हाइड्रोजन की बात कंपेयर करते हैं तो सारे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, Z1 है, और उसका मास नंबर डिफरेंट है, 1, 2 और 3। So इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखते हैं, तो we know that very well. These are the atoms of the same elements. हाइड्रोजन, 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 ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। उनके नाम अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ट्रिटियम, these are the name. तो इसका मतलब ये है, these are the atoms of the same elements having same atomic number but different mass number, isn't it? And this is called as isotopes. So that is, those are called as isotopes. Here, oxygen, 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 8, 8, 8. Atomic number is same, mass number is different, 16, 17, 18. All these are the isotopes. Carbon 12, 13, 14. एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए वो काउंट नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता, रीड भी नहीं किया जाता। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे बोला जाता है। रीजन बिहाइंड दैट, किसी भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। किसी भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। मास नंबर बदल सकता है, एंड हेंस उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वी हैव दिस वन, कार्बन 12, 13 and 14. These are the isotopes of carbon, isotope of oxygen, isotopes of hydrogen, isotopes of nitrogen, chlorine. Chlorine के तो 9 से ज्यादा isotopes आपको मिलते हैं। So what is the definition of isotopes? Isotopes, very simple definition. Atoms of the same element having same atomic number
but different mass number are called as isotopes, and all these are the examples of isotopes. Clear with this? Now, let's have the second definition. That is, you can say isobars. Isobars. ठीक है? Isotopes, isobars. Isobars का मैं example देना चाहूँगा आपको. That's you can say sodium 24, 12, and this is magnesium. Sodium 11, sorry, sodium 11, 12, and again here 24. So this is what we have. Sodium का atomic number 11 है, magnesium का atomic number 12 है, और ये दोनों का बात करते हैं तो mass number 24, 24 है, like this one. So these are isobars. Bars मतलब these are the atoms of the different elements. Sodium है, magnesium है, having different atomic number. Atom of different element, atomic number different होगा ही होगा, but their mass number is similar. Mass number is similar. So in this sense, what we can say here, these are the atoms of different elements having different atomic number but same mass number. Isotopes के केस में same atomic number, different mass number. यहाँ पे same mass number, different atomic number. This is the definition. So एक definition समझ में आएगा, दूसरा definition हमें समझ में आ जाता है because that becomes easy. So what we can see here, these are the atoms of different element having same mass number but different atomic number are called as isobars. कई सारे ले सकते हैं हम लोग, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, argon 40. There are different you can say. There are many mass numbers too again here. So this is called as, these are called as isobars. So isobars are the atoms of different element having different atomic number but same mass number are called as isobars. And third definition is nothing but the isotones. Isotones. Okay, isotones. अभी यही एग्जांपल अगर मैं देता हूँ आपको, यही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो इस केस में आप देखिए व्हाट द चेंज वी गेट हियर, ठीक है? सो यहाँ पे एक having mass number 23 and here magnesium having mass number 12 and 24. ऐसे दो देखते हैं हम लोग. So sodium 23 and magnesium 24. So इसका mass number 23 है और atomic number 11, isn't it? तो उसका न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? हमारा फॉर्मूला ऐसा है, A is equal to Z plus M, ऐसा फॉर्मूला है. A is equal to Z plus M, this is the formula. तो मास नंबर अगर 23 है, उसका Z 11 है, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? A minus Z. तो we have to A minus Z, so that becomes your 12. ये 12 बनेगा यहाँ पे. Got it? When we come to this one, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा. Here again 24 minus 12, it will become again 12. तो इतना 12 बनेगा. Got it? So we got this one. तो ये हम लोगों को मिलता है. दोनों केस में देखिए, this is the atom of sodium, this is the atom of magnesium, and they have different atomic number, different mass number, but they have same number of neutrons. यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं? न्यूट्रॉन्स लिखे जाते हैं. सोडियम के न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12. मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12. So अगर दोनों के न्यूट्रॉन नंबर 12 है, these are called as isotones. So in that sense we can say here, this is isotones are the atoms of different element having same number of neutrons. उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोगों को सिंपल सी बात करनी है. These are the atoms of different element having same number of neutrons are called as isotones. So these are the three more definitions, fundamental definitions related with an atom. Also everyone got it. Number one definition is isotopes. Number two is isobars. Number three is isotones. So what is isotopes? Atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called as isotopes. What are isobars? Isobars are atoms of the different elements having same number of mass but different atomic number are called as isobars. And what are isotones? Atoms of the different element having same number of neutrons are called as isotones. So these are the three fundamental definitions what we get here. Clear with this? Now, when we comes to the stability of an atom, stability के साथ चलते हैं तो यहाँ पे these are the fundamental properties which are also responsible for the stability of an atom. Stability मतलब कैसा है? See, there are 118 elements in the periodic table, है ना? और उनके आइसोटोप देखते हैं तो 450 से ज्यादा आइसोटोप्स periodic table में मिलते हैं. हर एलिमेंट के या मोस्ट ऑफ एलिमेंट के आइसोटोप्स आपको मिलते हैं. So कुल मिला के वो नंबर जाता है कि 450 से ज्यादा. So उस आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 118 elements, out of this, how many elements are stable and how many elements are unstable? Means unstable elements are more reactive or stable elements are less reactive. And that is what is stability. So ये जो stability है elements की, कि how it react and with what speed it reacts with some other elements.
that reactivity is decided by the stability, and stability is determined by these fundamental factors, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आइसोटोप्स, आइसोपास, ये सारे फैक्टर्स आते हैं, न्यूट्रॉन नंबर, ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। तो जिस किसी एलिमेंट्स का ये एटॉमिक नंबर कितना है, उससे मैजिक नंबर के इसमें भी बात किया जा सकता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो के फॉर्मेट में बात की जा सकती है। सो दैट यू कैन से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनके अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो सिमिलर होता है, दीज आर स्टेबल इन नेचर। जैसे कि कार्बन 12 की बात करते हैं, तो कार्बन 12 मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 12 माइनस 6 इज 6, न्यूट्रॉन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो उसका प्रोटॉन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन नंबर 6 आएगा, तो दिस एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल इन नेचर। ऑप्शन की बात करते हैं 16 एंड 8, तो इधर 8 आएगा, so this is also stable in nature. So stability depends upon proton to neutron ratio, this is one of the factor. दूसरा, that depends upon magic number, है ना, 2, 8, 18, these are the atomic numbers. So these are the atomic number which has the exceptional stability in the nature. The elements having atomic number 2, 8, 18, these has the exceptional stability, मतलब काफी अच्छी stability उनको nature में मिलती है. That is also been clear by the data. This has been also proved by the different types of data when we go through all the data. So that is what we are. So stability of the elements also depends upon this fundamental property. We are clear with this. So these are the fundamental definitions related with an atom. So now what we have done here in this chapter, we have seen fundamental properties related with an atom. Number one. Number two, we have studied J.J. Thomson atomic model and Rutherford's atomic model. Rutherford first time has given a breakthrough atomic model to us. But even we have seen drawbacks of it. तो Rutherford atomic model का drawback क्या था? Number one drawback था, he told that electrons revolves in a circular orbit around the nucleus. But one of the experiments in physics states that whenever any charged particles revolves in circular orbits, it emits the energy, and its energy decreases. Or if energy of electron decreases, it should follow a spiral path, not the circular path. और वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा तो फाइनली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। कल ही हमें देखा, ये पहला उसका डिफरेंस है। दूसरा, दैट Rutherford's atomic model could not explain the distribution of electrons in shells, subshells and orbitals. मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में रुदरफोर्ड नहीं बता पाया। बस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, इतना ही उसने बताया। But how is the distribution of electrons around the nucleus is not being stated by Rutherford. So these were the two very major drawbacks of Rutherford's atomic model. Or that's why science has to move ahead with the next atomic model, next atomic structure. So the journey starts over here. तो तीसरा एटॉमिक मॉडल की तरफ हमें जाना है, दैट इज नथिंग बट द बीम। पहले दो एटॉमिक मॉडल काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, और इसलिए हमें तीसरे एटॉमिक मॉडल के लिए मूव करना है, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बट जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक डिस्कवरी जब होती है तो उसके लिए दूसरी डिस्कवरी होना जरूरी है। तो जिस तरीके से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस ढूंढ निकाले थे, जिस आधार पर रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आगे चलता है, उसी तरीके से बोर्स एटॉमिक मॉडल अगर मार्केट में आना है, सामने आना है, तो उसके लिए कुछ डिस्कवरीज होना जरूरी है। तो फिजिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। दे लेड द फाउंडेशन फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो वी हैव टू डिस्कस दैट। और वो जो मेन कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। So discovery of electromagnetic radiations laid the foundation of you can say here Bohr's atomic model, or you can say also quantum mechanics model. At the same time, there is one important theory called quantum theory, which also laid the foundation for this Bohr's atomic model. So we have to first discuss what is this electromagnetic radiations, what is the dual nature of light, and then that how it laid the foundation of Bohr's atomic model. Then Bohr's atomic model is move from there. So let's move to the middle part. What we are related with nothing but dual nature of light. ठीक है, अभी हेडिंग भी समझिएगा, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर किसका? दैट इज वेव और पार्टिकल। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखिए हियर ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर तो आप अच्छी तरह समझते हो। स्प्लिट पर्सनैलिटी जिस तरीके से होते हैं, उस तरीके से ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे एक ही बंदा होता है और वो दो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है ना। एक बार बहुत ही प्यार से बिहेव करता होगा, एक तरफ बहुत ही गुस्से से बिहेव करता होगा, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट पर्सनैलिटी। काफी सारे मूवीज आ चुके हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से सिंगल फिनोमेना है लाइट, है ना। जैसे कि सनलाइट की हम बात करते हैं,
तो इस सनलाइट के बारे में, लाइट के बारे में दो थियरी एग्जिस्ट करते हैं। एक थियरी ये कहता है कि लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज वेव फॉर्म। लाइट वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेव फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, ऐसा उनका कहना है, उस थियरी का कहना है। और दूसरी थियरी ये कहती है कि लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्मेट ऑफ पार्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के फॉर्मेट में लाइट होती है और उसी फॉर्मेट में मूव करती है। दो थियरी आती है, एक ही चीज है लाइट। एंड लाइट के बारे में बोला जाता है कि electromagnetic light is the form of electromagnetic radiation, but the electromagnetic radiations of light may exist in the form of wave or may exist in the form of particle, split personality light। दो चीजें एक ही चीज है। और इसके प्रूफ भी मिलते हैं, इसके प्रूफ भी मिलते हैं। जैसे कि लाइट रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। दीस आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद लाइट। सो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम लोग को वेव नेचर ऑफ लाइट ही एक्सप्लेन कर सकता है। लाइट को अगर हम वेव नेचर का कंसीडर करते हैं तभी जाके डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी इमिशन। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी है बाय द आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम दोनों में, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिजिक्स में आप लोग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में काफी लाइट की रिलेटेड इजी प्रॉपर्टीज 10th 9th में भी आपने देखा हुआ है, 11th में आप और उससे ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो एक ही लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टी है। देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एंड उसे अगर एक्सप्लेन करना है तो लाइट को वेव फॉर्म का कंसीडर करना पड़ता है। लाइट इज इन द फॉर्मेट ऑफ वेव। और दूसरी तरफ अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, अगर हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट का कंसीडर करना है, तो उसके लिए हमें लाइट को पार्टिकल फॉर्म का लेना पड़ता है, तभी जाके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो आप देखिए ना कि लाइट ही है लेकिन दैट एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म। की तारीख में दोनों फॉर्म कंसीडर किए जाते हैं। नाइदर इट इज कंसीडर्ड ओनली ऑफ द वेव नेचर, नॉर इट इज कंसीडर्ड ओनली ऑफ द पार्टिकल नेचर, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसी चैप्टर में थोड़ा सा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद हम एक बहुत और बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग ड्यूअल नेचर के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखते हैं हम लोग, दिस इज द न्यूक्लियस और इसके अराउंड में ये ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ऐसा माना जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये माना जाता है कि कुछ थ्योरीज ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही है, ऐसा कुछ थ्योरीज मानते हैं। और कुछ थ्योरी ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का, इट इज नॉट अ पार्टिकल, वो वेव नेचर का ऐसा माना जाता है। तो यू डोंट बी इन दैट कंफ्यूजन, आपको उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि क्या इधर इसमें साइंस में ऐसा नहीं कि इधर दिस और अदर दिस, है ना। ये हाँ या ना इस टाइप का जवाब नहीं है और इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। there are some of the properties which are related with electrons can be explained when electron is considered as of wave nature, or there are some of the properties which are related with electrons can be explained when electron is considered as of a particle। तो इलेक्ट्रॉन को कुछ थ्योरीज में पार्टिकल कंसीडर किया जाता है तभी जाके कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ जगह उसको वेव नेचर का लिया जाता है तभी जाके कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाते हैं। सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर आल्सो कंसीडर्ड as of wave nature and as of a particle nature। तो पहला हम उसका वेव नेचर डिस्कस करते हैं, फिर उसका हम लोग पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे। ओके, तो लाइट जो होता है, लाइट, सो लाइट वेव के फॉर्म में आगे चलता है। सो दिस इज द एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, और ये उसका एक वेव नॉर्मल है जो हम एक्सिस लेते हैं यहाँ पे, है ना। दिस इज एक्स वाई एक्सिस सिंपली। सो हम लोग किस तरीके से दिस वेव प्रोपैगेट्स, वेव क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग पानी में अगर पत्थर फेंकेंगे तो पानी के ऊपर यहाँ पे वेव्स क्रिएट होते हैं, तो लाइट भी वेव्स के फॉर्मेट में आगे चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव के फॉर्मेट में आगे जाता है, प्रोपैगेट होता है। प्रोपैगेट मतलब आगे मूव करना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने आ जाता है। तो इन दैट सेंस दिस इज द पॉइंट जहां से मानो लाइट इमिट हुआ, तो ये लाइट वेव के फॉर्मेट में आगे चलता है लाइक दिस। सो दिस इज द वेव। जिस तरीके से आपने, शायद आप सी शोर पे कभी गए होंगे, सी शोर पे, तो वहां पे आपने देखा होगा दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वेव। ओके, अब ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हो सकता है कि ये जो क्रिस्ट होता है, ट्रफ होता है, ये क्रिस्ट दोनों सेम एक जैसे होते हैं, है ना। ये मेरा मिस्टेक है कि मैं एक साइज का नहीं निकल पाया हूँ। आप देखिए उसको, ये और ये दोनों क्रिस्ट एक साइज के होने चाहिए लाइक दैट, या फिर टफ भी होते हैं। थोड़ा सा मैं इसे रीड्रॉ करता हूँ बिकॉज वी नीड एटलीस्ट टू क्रिस्ट एंड टू ट्रफ्स। सो सी दिस इज लाइक दिस, ये।
So this is the first phase, you can say. This is the second phase, this is the first step, and this is the second step, you can say. This is, तो दिस इज द वेव नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अभी देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहाँ पे आते हैं ये भी आप सुनिए. मतलब आप जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, मतलब आइदर इट इज रिलेटेड आवर डेली रूटीन है नॉट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर नहीं होते थे तो हमारे घर में मोबाइल भी नहीं होता था. जहाँ पे हम लोग अभी लेक्चर्स ले रहे हैं वो मोबाइल आपके हाथ में होता. हमारे सारे मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम करते हैं. हमारे घर के अंदर के रिमोट कंट्रोल, सारे रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम करते हैं, है ना. तो हम जो टीवी का रिमोट यूज करते हैं, हम हमारे म्यूजिक सिस्टम का रिमोट यूज करते हैं, तो जितने सारे एसी का रिमोट यूज करते हैं, सारे रिमोट कंट्रोल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण. तो मोबाइल इज अ रिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अभी देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये साउंड एनर्जी है, बात कर रहा हूँ साउंड एनर्जी. ये साउंड एनर्जी कैमरा में लैपटॉप में कैप्चर होके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट की जाती है और वो कन्वर्ट करके टावर तक जाती है, टावर से आपके मोबाइल तक आ रही है और आपके मोबाइल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैच किया जाता है और वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. सो हमारे सारे मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही काम करते हैं, सारे मोबाइल. ठीक है. सो उसी तरीके से दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे घर में आ चुके हैं, सबके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ चुके हैं. सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, दिस इज एक्चुअली एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव. Electromagnetic radiations are actually energy which is transmitted in the form of wave and that wave propagates into the atmosphere. तो वेव जा रहा है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव फॉर्म में वो आगे चलते हैं. तो वेव के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज होते हैं. आप जैसे कि देखिए प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि आपके घर में किसी का मोबाइल का अगर हम सिम कार्ड की बात करते हैं तो अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड आप यूज करते हो सकता है आपके यहाँ पे एयरटेल का सिम कार्ड हो, कोई रिलायंस का यूज करता हो, जियो का, कोई बीएसएनएल यूज करता हो, या कोई आइडिया, कोई वोडाफोन या और कोई सिम कार्ड आपके होता है कि हमने अगर पर्टिकुलर फोन को फोन लगाया तो पर्टिकुलर फोन को ही चलता है. मतलब रिलायंस का एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, एयरटेल का एक अलग स्पेक्ट्रम होता है. दैट स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट वो एक स्पेक्ट्रम होता है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है. तो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में कंपनी को अलर्ट किया जाता है. तो वो 1800, 1900, 2100 पे बीएसएनएल है, 1900 पे शायद एयरटेल है, 1800 पे शायद रिलायंस काम करता है. तो ये स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने उन्हें अलर्ट करके दिया है. दैट स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग कंपनी को दिए हैं. तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम रिलायंस को दिया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम एयरटेल को दिया हुआ है, कुछ आइडिया को दिया है, लाइक वो एक दूसरे को नहीं दिया था, इसलिए वो पर्टिकुलर इसको ही कैच करते हैं. ठीक है. सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. मतलब एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम सर्टेन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. और वो प्रॉपर्टीज कौन से है, वो प्रॉपर्टीज कौन से है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अपने प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज कौन से है. तो आप देखिए ना वहां पे प्रॉपर्टीज होते हैं. सो नंबर वन प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. दिस इज लैम्डा. दूसरा जो प्रॉपर्टी दैट इज यू कैन से वेव नंबर दैट इज म्यू बार. देन तीसरा frequency that is mu. Fourth that is velocity that is c. And fifth one that is amplitude that is given by capital A. So there are, you can say, these are the 5 properties with which every electromagnetic radiation is characterized, है ना. जैसे कि देखिए अभी मैं दीपक सर आपके सामने हूँ, मेरे अपने कुछ मैं भी आपके जैसा इंसान हूँ, बट मेरे अपने कुछ फीचर्स है, मेरे अपने कुछ कैरेक्टर, मेरा एक अलग साउंड है ना. इससे मैं कैरेक्टराइज किया जाता है यार ये बंदा दीपक सर आपके सामने आ जाता है. तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएगा. तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना एक वेवलेंथ है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना एक वेव नंबर है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना फ्रीक्वेंसी है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना वेलोसिटी और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना एम्पलीट्यूड है. हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अलग हो सकता है, अगर सेम होगा तो एक ही है, लाइक दैट. उसी तरीके से होता है ना. कभी कभी देखिए ट्विंस होते हैं, ट्विंस. हमारे न्यूक्लियर एकेडमी के अंदर एक खासियत थी कि 2010 से लेकर 2016 तक एवरी ईयर 2 या 3 ट्विन हमारे क्लास के अंदर रहते थे. और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. वो ट्विन एकदम एक जैसा था, रहते एक जैसे थे, एकदम सिमिलर. तो नहीं, वो उनके कुछ बस खास कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पर उन्हें सेपरेट आउट किया जा सकता है, लाइक दैट. तो उसी तरीके से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय दिस प्रॉपर्टीज. सबसे पहला प्रॉपर्टी है वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज व्हाट? So you know this is the wave.
Electromagnetic radiations propagates in the form of wave. तो ये हमारा wave. So this is called as your crest. This is called as your trough. This is also called as your crest. This is also called trough. मतलब ये जो पिक एरिया है उसे क्रिस्ट कहा जाता है, एंड जो ट्रफ एरिया है उसे वैली उसे कहा जाता है ट्रफ. सो क्रिस्ट एंड ट्रफ. तो ऑल्टरनेट देयर इज ऑलवेज अ क्रिस्ट एंड ट्रफ. किसी भी वेव के अंदर ऑल्टरनेट क्रिस्ट ट्रफ होता है. जैसे कि पानी के ऊपर पत्थर मारने के बाद उसके वेव जाते हैं, या समंदर में आप जाते हैं, समंदर के सामने समंदर के ऊपर देखते हैं तो वेव जाते हैं. तो वेव का अपर पार्ट क्रिस्ट है, जो लोअर पार्ट है वो वैली है. तो हमेशा वेव ऐसे होगा. सो इस तरीके से ऑल्टरनेट क्रिस्ट ट्रफ ऐसा कितना भी चलाओ उतना ही चलेगा. Now, this is the crest and this is the crest. The distance between two successive crests is nothing but the wavelength. दो successive crest is called wavelength. या फिर दो successive trough, ये भी मैं लेता हूँ lambda, तो ये भी दो successive trough, that is also called wavelength. The distance between two successive crests or distance between two successive trough is called wavelength, and this wavelength is noted by lambda. Lambda is a notation. Okay, ये notation आप अच्छी तरह जानते हो. Lambda, that is मैंने यहाँ पे भी लिखा है. This is lambda. So lambda is the notation of this wavelength. All of you getting it? Distance between two consecutive crests or two consecutive trough is called as a wavelength. उसे wavelength कहा जाता है. That is measured in lambda. Lambda का यूनिट अगर देखेंगे तो मीटर, ये उसका यूनिट है. जो ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं तो मीटर उसमें मेजर किया जाता है. All of you got it? So what is wavelength? The distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called as a wavelength. सबसे पहला कैरेक्टर आता है वेव का. दूसरा जो आता है that is you can say frequency लेता हूं मैं. फिर उसके बाद वेव नंबर ले. फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी वेव्स. एक क्रेस्ट और एक ट्रफ उसे एक वेव कहा जाता है. तो यहां से लेकर दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ. यहां तक, तो यहां से लेकर इसे एक वेव कहा जाता है, सिंगल वेव. फिर यहां से लेकर इधर तक इसे दूसरा वेव कहा जाता है. एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट होता है और से एक वेव कंप्लीट होती है ना. सो यहां से लेकर इधर तक फर्स्ट वेव होता है. दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ सिंपली बिकॉज़ इट्स अ वेवलेंथ. सो इन दैट सेंस यू कैन से दिस इज वेवलेंथ. अभी यहाँ पे हमने बड़ा डायग्राम निकाला है. इसका अगर छोटा डायग्राम निकालते हैं ना, छोटा डायग्राम, तो वेव एक्चुअली ऐसे होगी, लाइक दैट. ऐसे 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 होंगे. शायद आपने फिल्मों में तो देखा होगा कम से कम कि कोई पेशेंट जब आईसीयू में होता है तो उसके हार्ट रेट वो सब मॉनिटर पे कंट्रोल किया जाता है. इस तरीके से वेव दिखते हैं, जिसे ईसीजी कहा जाता है. किसी भी पेशेंट का ईसीजी निकाला जाता है तो इस तरीके से वेव दिखते हैं उसके, है ना. और ये प्लेन आएगा तो हम समझते थे चलो डॉक्टर सॉरी कहते हैं हम लोग, लेकिन ये अगर ठीक से चल रहा है तो ये प्रॉपर चल रहा है ना. तो ऐसा वेव है. तो दिस आर द वेव. तो यही डायग्राम छोटा निकालेंगे तो इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से आता है ये वेव. तो अब अगर हम ऐसा मानते हैं कि दिस इज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अगर हम मानते हैं कि दिस इज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. सो इस पॉइंट से हाउ मेनी वेव्स पासेस पर सेकंड. हमने एक कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट से हाउ मेनी वेव्स पासेस पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी वेव पासेस पर सेकंड थ्रू एनी रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. हम जो नॉर्मली बोलते बोलते कहते हैं पुणे सिटी में रहते रहते कि यार हमारे ये ढोगा रूट पे कितने बसेस पर सेकंड पर मिनट चलते हैं, पर आवर चलते हैं. फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. या पुणे से अगर बेंगलोर की तरफ एरोप्लेन जा रहा है तो वो एरोप्लेन का फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेन्स आर टेकिंग, मतलब टेक ऑफ राइट फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर पर डे और पर आवर. दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो वही है हाउ मेनी वेव्स पासेस थ्रू एनी रेफरेंस पॉइंट. कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम करते कंसीडर करते तो वहां से आगे कितने वेव्स पर सेकंड में जाते हैं. और एक वेव क्या होता है, एक क्रिस्टल ट्रफ. दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी रेफरेंस पॉइंट पर सेकंड. एक सेकंड कितने वेव जाते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. और वो 10 रेज़ टू के पावर में रहते हैं, मतलब 10 रेज़ टू 12, 10 रेज़ टू 26 इसमें रहता है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता है, कुछ कम भी रहता है, लाइक दैट. तो ये बहुत होते हैं क्योंकि छोटे वेव्स बहुत छोटे होते हैं, लाइक दैट. ये हमने बहुत बड़ा निकाला है बट वेव बहुत छोटे होते हैं. सो 10 रेज़ टू 14, 10 रेज़ टू 16, 10 रेज़ टू 24 ये उनका रहता है. So this is what can be frequency. Frequency is denoted by nu. Nu v है स्मॉल टाइप का, उसे हम लोग nu ऐसा कहते हैं, nu. So frequency is denoted by nu. तीसरा प्रॉपर्टी वेव नंबर. वेव नंबर इज दैट कि अगर हम मानते हैं कि एक सेंटीमीटर डिस्टेंस है, हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. Are you getting it? So what is wave number? How many waves are present in a centimeter distance? Per centimeter distance is called as a wave number, and that is denoted by nu bar. That is denoted by nu bar. Nu से frequency है और nu bar से wave number है. Frequency क्या है? Number of waves passing through any reference point per second is called as a frequency. And how many waves are present per centimeter distance is called as wave number.
दैट इज न्यू बार ऐसे दिखाया जाता है. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. अभी हम लोग लाइट की वेलोसिटी जानते हैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. And light is nothing but the electromagnetic radiations. Light propagates in the form of electromagnetic radiations. Light itself is electromagnetic radiations. तो लाइट का स्पीड जो है 3 into 8 मीटर पर सेकंड है. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी स्पीड कितना रहेगा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी. और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. एक सेकंड में लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करती है दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी कैन से. तो डिस्टेंस कवर बाय अ वेव पर सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय c, स्मॉल c से. और c कितना है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. वो फिक्स है लाइट का जो हम अच्छी तरह जानते हैं. तो दिस इज नथिंग बट द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो 3 into 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस एक सेकंड में वो वेव कवर करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी डिनोटेड बाय c. Last is nothing but the amplitude. What is this amplitude? Amplitude is this. Now see ये जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है. इस वेव नॉर्मल से यहाँ, मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से इधर तक डिस्प्लेसमेंट. या फिर ट्रफ देखते हैं तो ये देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक. सो हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड. इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है. जितना हाइट होता है उतना ही डेप्थ होता है. ये मैंने बताया कि ये मेरी गलती है कि मेरा डायग्राम थोड़ा सा छोटा बड़ा हो चुका है. जितना बड़ा टफ होता है, मतलब ये अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होना है. मतलब साइंटिफिकली ड्रॉ करते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट हमें पता है कि दिस इज व्हाटएवर द हाइट ऑफ क्रिस्ट इज एम्पलीट्यूड या डेप्थ ऑफ ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. या दूसरे वर्ड्स में डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेव नॉर्मल. ये हमारा वेव नॉर्मल, इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अप या डाउन दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड. ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए बेटर क्या करिए आप लोग हाइट ऑफ क्रिस्ट or height of trough, depth of trough is called as you can say amplitude. These are the 5 important characteristics of wave. आपके सामने कोई भी वेव आएगा तो उस वेव का ये आपको देखना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हम कभी-कभी एफएम सुनते हैं, है ना? और पुणे सिटी के अंदर एफएम के जो नाम है 93.3, 98.4 या कुछ तो है ना 95.9 रेडियो मिर्ची वगैरह, रेडियो सिटी 91 पॉइंट समथिंग, ये नंबर्स है. तो क्या आपको लगता है कि ये जो है 91.3 ये बहुत ही लकी नंबर था इसलिए उन्होंने चूज किया, या 98.5 बहुत ही लकी था इसलिए वो उन्होंने चूज कर दिया? इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाट इज दिस? कभी सवाल आया हमारे दिमाग के अंदर, व्हाट इज दिस 98.4, व्हाट इज दिस 91.3, व्हाट इज दिस 95.95? ये है क्या, ये क्या नंबर्स है? एक्चुअली दिस इज द फ्रीक्वेंसी. और वो बोला भी जाता है कि वी आर टॉकिंग राइट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज में. और फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, दैट इज साइकिल्स पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज में मेजर किया जाता है एचजे फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है उन्होंने वही दिया, दैट इज 98.3. ये फ्रीक्वेंसी है. 91.5 जो भी वो उसका फ्रीक्वेंसी है. सो ये जो एफएम हम लोग सुनते हैं उनको जो फ्रीक्वेंसी अलॉट किया गया है वो उसी फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं. और हम जब हमारा मोबाइल या फिर हमारा जो एफएम है उस फ्रीक्वेंसी पे लगा देंगे तो वो वही फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है. हमें ऑप्शन है, हम कोई भी फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं. हमारे मोबाइल के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, एचजेड. और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बातें करते हैं. ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड दिस प्रॉपर्टीज. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? So be clear now, we are discussing the topic electromagnetic waves and its duality. मतलब electromagnetic radiations has the dual nature, that is wave nature as well as particle nature. तो पहले हम लोग वेव नेचर की बात कर रहे हैं और वेव नेचर के अंदर एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय these waves. और वेव्स की प्रॉपर्टीज होते हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? वेवलेंथ, then wave number, frequency, velocity and amplitude, isn't it? So these are the properties. So wavelength क्या होता है? मैंने बताया what is wavelength. It is a distance between two successive crisps or trough is called as a wavelength and it is denoted by lambda and its unit is meter. What is frequency? Number of waves passing through any reference point per second is called as, you can say, frequency, and that is measured in hertz. Then next is you can say wave number. How many waves? How many number of waves are present per centimeter distance? That is called as wave number, and that is measured here. Now this is the velocity. Velocity is what you have. The distance traveled by the wave in a 1 second is called as velocity, and amplitude, maximum displacement from the wave normal. या फिर height of crest और depth of trough is called as velocity. तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे सामने आएगा तो उसकी ये प्रॉपर्टी चेक करना है.
इसके आधार पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका वेवलेंथ कितना है, एवरीथिंग क्या है। और उसके आधार पर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिलता है, कई सारे वेवलेंथ है, जिसमें से हम देखेंगे हमें जो लाइट दिखाई देता है, जो सनलाइट हमें दिखाई देता है ना, हमारे मोबाइल में जब रेंज आता है तो उसके रेडिएशन हमें नहीं दिखाई देते, बट सनलाइट हमें देता है, वो 400 टू 800 नैनोमीटर के बीच में है। तो 400 टू 800 नैनोमीटर के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है, वो रेडिएशन हमें दिखाई देते हैं। उसके नीचे के, उसके ऊपर के रेडिएशन हमें नहीं दिखाई देते, इंफ्रारेड नहीं दिखाई देते, रेडियो वेव्स नहीं दिखाई देते, है ना, एक्स रेज नहीं दिखाई देते। सो दैट्स व्हाई, बट ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। तो एक्स रेज का एक अलग स्पेक्ट्रम है, एक्स रेज है, यूवी है, आईआर है ना, ये सारे हैं। तो ये स्पेक्ट्रम हम टोटल लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, एंड सी यू टुमारो with next, that is the particle nature of wave. ठीक है? So hope so you got it. We will revise it, and tomorrow we'll meet with the next topic. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.